सर उनका स्वागत सबको फेलिसिटेट जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होनी चाहिए ईश्वर का नमन और वंदन करके। और मैं हमारे सभी डेलीगेट्स को जो मंच पे विराजमान है उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया आप हमारे दीप के और प्रस्थान करें और इसको प्रज्वलित करें ताकि ये जो खूबसूरत बंधन है बंगाल और मध्य प्रदेश के बीच ये और भी सुदृढ़ हो। With the lighting of the auspicious lamp, ladies and gentlemen, we really hope that the beautiful relation, the business relation between West Bengal and Madhya Pradesh becomes stronger and more effective for the excellence and a brighter prospect for the country. Thank you, gentlemen. और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। सर आप हमारे सभी डेलीगेट्स का एक एक करके स्वागत करें। सबसे पहले और मैं चाहती हूं जोरदार तालियों के साथ आप उनका अभिवादन करें। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। I'd request him to welcome Mr. Sanjeev Puri, Chairman and MD, ITC Limited. Please welcome Mr. Sandeep Ghosh, MD and CEO, MP Birla Group, right beside RCM. Please welcome Mr. Sandeep Kumar, MD, Tata Steel Downstream Products Limited. मिस्टर अरुण गड़ोड़िया, चेयरमैन EEPC, हमने अभी उनका अभिवादन किया। एंड प्लीज वेलकम मिस्टर संजय दुबे, ACS, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड मिस्टर आलोक बिरला, MD, Swara Baby. And after all the felicitation has been done, can we have a look at the audiovisual on the prospects of investment in Madhya Pradesh? India, on track to become the world's third largest economy, with GDP crossing $5 trillion under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, aspires to reach its goal of becoming a $30 trillion economy by 2047. The state of Madhya Pradesh has taken a lead in fulfilling his bold vision of Vikasit Bharat by 2047. while also accomplishing Chief Minister's vision of Vikasit Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is home to over 112 industrial zones, 7 smart cities and 14 proposed greenfield industrial areas. The state has a well-developed multimodal transportation system, including a robust road network of more than 5 lakh plus kilometers and enhanced air connectivity with 5 major airports at Bhopal, Gwalior, Indore, Khajuraho and Jabalpur, making it future ready. With a strong focus on education and skill development, Madhya Pradesh offers a well-equipped talent pool that serves as a major driver of growth in the region.
Madhya Pradesh offers an ecosystem where businesses thrive, where the presence of investor-friendly policies, single window clearances, and transparent governance make it an ideal investment destination. These efforts aim to create employment opportunities, enhance quality of life, and significantly contribute to India's economic growth, aligning with the vision of Vikasit Bharat, Vikasit Madhya Pradesh. Painting a canvas of progress and economic expansion, we are doubling our efforts with regional industry conclave in Ujjain, Jabalpur, Gwalior, and upcoming conclaves in Sagar and Rewa. That's Madhya Pradesh, the future-ready state. Be a part of shaping the future. Invest in Madhya Pradesh and unlock endless possibilities. Join us at the Invest Madhya Pradesh Global Investors Summit on 7th and 8th February at Bhopal. ये धरती रामकृष्ण परमहंस की धरती है, स्वामी विवेकानंद की धरती है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, बंकिम चंद्र चटर्जी की धरती है। मैं मध्य प्रदेश की तरफ से आप सभी लोगों को यहाँ पे उपस्थित होने के लिए मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ऑनरेबल सीएम सर, ऑनरेबल श्री संजीव पुरी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईटीसी लिमिटेड, श्री संदीप घोष, एमडी एंड सीईओ एमपी बिरला ग्रुप, श्री पीएम प्रसाद, सीएमडी कोल इंडिया लिमिटेड, श्री संदीप कुमार, सीएमडी टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, श्री आलोक बिरला, एमडी स्वरा बेबी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, श्री गरोडिया, चेयरमैन ईपीसी, different associations of industries, our dear investors, our officers and friends from media. So let me welcome all of you to the journey of Madhya Pradesh. Now Madhya Pradesh is the second largest state in terms of area, and it is the second largest in terms of food grain production in country also. We are first in terms of organic farming share in India. We have been one of the finest state in renewable energy sectors, and we have the largest solar power plant situated in Omkareshwar, Khandwa in Madhya Pradesh. We are second most cleanest state in India, with Indore have won the cleanest city title for more than 5 times, 6 times rather, and we have a big consumer market. We are fifth most populous state in India. Enchanted by its scenic charms, I desire to bask in its blissful arms. Rejoice in victories amidst the brave and bold. The adventure then unfolds. The courageous roars and soaring hooves. I bow down and hear. Spirit is at peace. I seek the divine, and uncertainty I seize. Purity. Passion.
that reside within. How many I want to treasure? Beauty, adventure, peace and culture. महाकाल की पवित्र नगरी से पधारे मध्य प्रदेश को एक उद्योगपूर्ण दिशा दिखाने वाले मध्य प्रदेश के लाडली बहनों के आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जनक मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मैं अनुरोध करूंगी कि वो हमारे बीच आए और हमारा मार्गदर्शन करें। Welcome, sir. आज के इस इन्वेस्ट इन कार्यक्रम में कलकत्ता के इस मंच पर बैठे अभी गए संजीव पुरी जी, हमारे बीच में विस्तार से बात रखी माननीय संदीप घोष जी, कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी सम्माननीय पीएम प्रसाद जी, सीएमडी टाटा स्टील संदीप कुमार जी, अभी जिनने अपने विषय रखा आलोक बिरला जी, चेयरमैन अरुण गरोड़िया जी, इस अवसर पर विभिन्न एसोसिएशन के सभी पधारे हुए सम्मानित सदस्यगण, सभी उद्योगपतिगण, निवेशकगण, इस अवसर पर मध्य प्रदेश से आए सभी अधिकारीगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, मध्य प्रदेश से चलकर जब मैं यहाँ आया हूं तो ये सुखद संयोग है, वो झीलों की नगरी और आपकी आनंद की नगरी दोनों का बराबर तालमेल है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं स्वयं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं और आप महाकाली की नगर वाले हैं, सारे लोग हैं। महाकाली और महाकाल से इस सृष्टि का सृजन होता है, आनंद की वर्षा होती है, एहसास होता है। कभी कभी काल के प्रवाह में कई बार उथल पुथल का दौर है, जैसे सांस भी आती और जाती है, ये स्पंदन बराबर बना रहता है। और कितना सुखद संयोग है, कलकत्ता के निवासियों के लिए तो परमात्मा की विशेष कृपा है, जहां से 105 साल पहले हमारे स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, वो उद्घोष उनने तब कर दिया जब चारों ओर अंधकार था। और न केवल स्वामी विवेकानंद की बात है, आप कहीं से शुरू करो तो गुरुवर परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी का ध्यान आता है, जिनने इस कर्मशील दुनिया में, हम सब कर्म प्रधान दुनिया के लोग हैं, वो खास करके भारत का मूल दर्शन, कभी कभी ध्यान भटकता है। ध्यान भटकने का कारण कहीं न कहीं दूर से देखने वाले हमारे अपने सनातन धर्म को, हमारे दर्शन को अकर्मण्यता से भी जोड़ लेते हैं। हम बैठे रहेंगे, भगवान अपने आप दे देगा। तो भगवान के प्रति एक ललक पता नहीं कितने प्रकार के लोगों को कहां भटकाती है। लेकिन मैं इस नाते से जरूर कह सकता हूं कि कलकत्ता वो धरती है जहां विवेकानंद ने भगवान की इच्छा जरूर जाहिर की कि मैं भगवान देखना चाहता हूं, लेकिन भगवान को देखने के बाद सच्चे अर्थों मनुष्य के अपनी पहचान दिलाने वाले परमहंस भी इसी धरती पर, इसी कलकत्ता से थे, जो कर्म के आधार पर दुनिया में मनुष्य को उस ललक की तरफ ले गए। हम कभी विवेकानंद का जीवन देखेंगे तो ध्यान में आएगा, जिनने अपनी तमाम पढ़ाई के बीच में भगवान को देखने की जिज्ञासा प्रकट की, लेकिन एक बार भगवान को देख लिया तो वो भगवा वस्त्र जरूर धारण करते रहे, लेकिन सच्चे अर्थ में वो मानव धर्म को समझते हुए उनने हमारे अपने कर्मों के आधार पर चल करके भारत के गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव का संकल्प धारण किया। इसलिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आप उस स्थान के भी लोगों, मैं आपको बधाई देना चाहता। जाने अनजाने काल के प्रवाह में सरकारों के बीच जब हम अपने कुर्सी पे बैठते हैं
तो दोनों पक्ष से हमारा संपर्क आता है। एक पक्ष आता है जो नीडी पर्सन है, जिसको आवश्यकता है, वो काम मांगता है, अपनी कठिनाइयों में मदद मांगता है, और एक पक्ष जो इसमें अपना रोल अदा करता है, लेकिन जाने अनजाने पता नहीं क्या होता है कि उद्योगपतियों के प्रति सरकार की दृष्टि टेढ़ी रहती। मैं उसकी बात से सहमत नहीं हूं, मैं उसको सीधा करना जानता हूं, मुझे सीधा करना अच्छा लगता है। उद्योगपतियों के साथ खड़े होकर के अगर विकास के कारवां में सरकार खड़ी नहीं रहेगी तो कहां खड़े रहेंगे? सरकार को तो इसमें बराबरी से साथ देना पड़ेगा, सरकार को उद्योग और निवेशकों को आमंत्रित करना पड़ेगा। हमारे इस देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री का मैं अभिनंदन करता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से पूरा देश केवल 10 साल के छोटे से समय में कहां 11वें नंबर पे थे, कहां 5वें नंबर पे आ गए दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था में। एक बार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। भारतीयों में कोई कमी नहीं है, उनकी युक्ति, बुद्धि, क्षमता, योग्यता, सभी प्रकार के काम को करने कराने के लिए। लेकिन काम को करने कराने के लिए ये जो शासन की अम्ब्रेला है, शासन की जो छतरी है, इसकी अनुकूलता भी चाहिए। कभी कभी छतरी ऐसे रखना चाहते हैं और पानी को उल्टा तरफ ले जाने के बजाय छतरी उल्टी करके हम चाहते हैं कि पानी हम पे नहीं आए। ये कैसे हो सकता है? ये तो हमको समझने की जरूरत है। शासन के अंदर शासन के सभी अंगों को चलाने के लिए, क्योंकि मैं जिस धरती से आता हूं वो सम्राट विक्रमादित्य की नगरी भी है, और हमारे यहाँ विक्रमादित्य की नगरी अर्थात उज्जैन ये 2000 साल पहले भी सुशासन के लिए जानी जाती थी। दानशीलता, वीरता, न्यायप्रियता, जितने प्रकार के मानवोचित गुण हो सकते हैं एक व्यक्ति में, वो सब कैसे हो सकते हैं? ये उनके कारण से जानी जाती है। इसलिए हमारे यहाँ पुरुषार्थ पराक्रम में अगर कोई बात आती है, किसी नाम से अगर कोई संस्कृति गौरवान्वित होती है, वो स्वामी विवेकानंद के समान विक्रमादित्य को भी 2000 साल पहले इसी नाते से याद किया जाता था, जिसके कारण से शासन की व्यवस्था में शासन का मन कैसा होना चाहिए। मुझे इस बात की आनंद भी है, मैं कोट भी करता हूं इस बात को, कि हमारे यहाँ सन प्रारंभ होने से, जैसे ये ईस्वी सन 2024 है, तो ईस्वी सन 2024 ये ईसा मसीह के जन्म के साथ जुड़ता है। कोई और संवत होगा या सन होगा तो किसी महापुरुष के शरीर छोड़ने से हो सकता है, लेकिन दुनिया में एकमात्र देश भारत है जो अपने यहाँ के सुशासन के साथ साथ अपने पूरे देश में आर्थिक रूप से समृद्धि की संकल्पना के आधार पर वो संवत प्रवर्तन कराता है। आर्थिक रूप से समृद्धि कैसी कि दुनिया के अंदर धन की भी महत्ता है, इसलिए साल में हम एक बार दिवाली मनाते हैं। ये हमारा धर्म का आनंद भी है, लेकिन पूरे साल दिवाली नहीं मनाते हैं, पूरे साल दिवाली की मिठाई खाते हैं। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है, क्योंकि हम जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं। हम हर एक किसी के साथ, गरीब से गरीब आदमी के भी दरवाजे पर आनंद का सुबह का सवेरा देखना चाहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमारे अलग अलग अधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी है, हमने अपने मध्य प्रदेश की सरकार बनने के बाद ये योजना बनाई कि हाँ इन्वेस्टर समिट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टर समिट आमतौर पर हमारे यहाँ पहले एक ही शहर में होती थी, लेकिन एक शहर से पूरे प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती। प्रदेश बहुत बड़ा है और प्रदेश की संभावना भी बहुत बड़ी है, और प्रदेश की संभावना में कौन सा सेक्टर छूटेगा? अभी मैं लाइन से सबके प्रेजेंटेशन देख रहा था, हमारे यहाँ से कॉटन निकल करके पूरे देश में जाता है, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स की संभावना अगर कहीं है तो सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में है। मुझे इस बात का आनंद है। अब मैं बीच में कोयम्बटूर गया था और मुझे कोयम्बटूर में कई सारे लोगों उद्योगपतियों से मिलने का मौका मिला, तो मुझे ये भी जानकारी दी गई, इसमें अधिकांश लोग तो कलकत्ता के हैं। मैं कलकत्ता वालों के पुरुषार्थ को नमस्कार करता हूं, आपको बधाई देना चाहूंगा, जो यहां से वेट कर देख रहे हैं कि कॉटन कहां से मिलेगा और कपड़ा कहां बनेगा। ये उद्यमशीलता है, यही तो सृजनशीलता है कि हमारे काम को करने के लिए हमारे लिए व्यापार व्यवसाय के केंद्र कहां से हो सकते हैं, व्यापार बढ़ेगा कहां से। लेकिन इसकी बीच की कड़ी में मार्ग निकालने में आया हूं। मैं कह रहा हूं कि कोयम्बटूर में जरूर इंडस्ट्री लगाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश भी पलक पावड़ बिछा के आपका स्वागत करना चाहता है, आपको आमंत्रण देना चाहता है।
आप कहां से कहां काटन बना करके, कपड़ा बना करके अपनी दो तरफ आपको आना जाना पड़ेगा। आज के जमाने में सबका समय कीमती है। जो कोयम्बटूर में मदद मिल रही वो मध्य प्रदेश सरकार देने को तैयार है। आपके लिए कोई कष्ट नहीं है, सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों के लिए, और न केवल रेडीमेड गारमेंट्स की बल्कि माइनिंग के सेक्टर से लगा करके इंडस्ट्री में जिस क्षेत्र में भी जाना है, ये हमारे कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वाले हैं। आप कह रहे हैं कि ये नॉर्दर्न इंडस्ट्री से लगा करके सभी प्रकार के, तो एनर्जी का सेक्टर हो, टूरिज्म का सेक्टर हो, जिस भी सेक्टर में जो भी इंडस्ट्री लगाना, हैवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई सेक्टर हो, लघु कुटीर उद्योग हो, सभी क्षेत्रों में समान रूप से, केवल हमारे अपनी जमीन का, बिजली का या ये जो बताई गई पॉलिसियों पे भी बात नहीं कर रहा हूं। ये पॉलिसियों पे बात करना तो हमारे अधिकारी कर देते हैं। अरे आप आइए और आपको लोगों पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। तो जब हमको काम कराना ही है तो काम कराने के लिए हमारा मन भी बड़ा करना पड़ेगा, और जब मन बड़ा करेंगे तो मार्ग निकलेंगे। क्योंकि आगे पीछे परमात्मा ने आपको अगर मौका दिया है तो मुझे भी मौका दिया है, और आपका और मेरा मौका मिलकर के न केवल मध्य प्रदेश, मैं ऐसा नहीं कहता कि कलकत्ता या बाकी राज्यों में आप काम बंद कर दीजिए। जहां आप काम कर रहे हैं वहां जरूर करिए, लेकिन काम को, आयाम को रोकिए मत। ये परमात्मा की दया है, उनने आप में प्रतिभा दी है, क्षमता दी है, योग्यता दी है, अवसर दिया है। इस अवसर को पहचाने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जहां भी हैं वहां से 10-10 गुना आगे बढ़े और 10 प्रकार के काम करें। इसी प्रकार से काम करते जाएंगे तो मुझे लगेगा कि अपने आज की हमारी ये मीटिंग सफल हुई। मेरी अपनी ओर से पुनः आपको सबको निमंत्रण है, और मैं तो काल की नगरी से आता हूं बाबा, महाकाल की नगरी से आता हूं। महाकाल को महादेव के नाते से जानते हैं। महादेव का अपना महादेव वाला स्वरूप तो हम सबके लिए आशीर्वाद वाला है ही, लेकिन सच्चे अर्थों में वो जन्म से मृत्यु के बीच का सबका समय नियत है, इसका इंगित करने वाले देवता भी है। अर्थात समय सदैव सबके लिए मिला है। ये हम पे है कि हम समय का सदुपयोग करें, और हम और भाग्यशाली हैं जब यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार सरकार बना करके भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था में ले जाना चाहते, और हम और आप मिलकर के सभी राज्यों के साथ, भारत के साथ कदम से कदम मिला करके मध्य प्रदेश भी उनके नेतृत्व में चलना चाहता है। और निश्चित रूप से आपके सबके माध्यम से सभी सेक्टर में हम सब मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे, देश को भी आगे बढ़ाएंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे, और हमारे अपने बाकी जितने भी आप पे निर्भर रहने वाले लोग भी आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इंजीनियरिंग लॉजिस्टिक उद्योग सेक्टर के उद्योगपतियों को आज आमंत्रित किया गया था। 700 से ज्यादा उद्योगपति आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कई सारे उद्योगपतियों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में उद्योगपति मध्य प्रदेश के आयोजन में शामिल हुए, ये इस बात को बताता है कि वो मध्य प्रदेश पे कितना भरोसा कर रहे हैं, और ये हमारे लिए संतोष की बात है। 28 से ज्यादा उद्योगपतियों से 1-to-1 की चर्चा की गई, जिसमें मैं स्वयं शामिल हुआ हूं। राजीव मुद्रा जी चेयरमैन जेएमएस माइनिंग, अश्विन लोढ़ा जी एमडी MCO ओरिएंटल पेपर मिल्स, इंद्रजीत मुखर्जी वाइस चेयरमैन इत्यादि कई सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों से डॉलर, रूपा, ऐसे अलग अलग प्रकार के रेडीमेड गारमेंट्स के अलग अलग निवेशकों से भी व्यक्तिगत चर्चा हमारे द्वारा की गई है। 7 से अधिक औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधियों ने, प्रतिभागियों ने सहभागिता की है, जिनके माध्यम से नेस्कॉम, अपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, लघु उद्योग भारती, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज आदि के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में 10 अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक मिशनों ने भी भागीदारी की है। जर्मनी, रूस, कनाडा, स्पेन, ग्रीस, थाईलैंड, एल साल्वाडोर, बांग्लादेश, मालदीव, ग्वाटेमाला इत्यादि के काउंसिल जनरल और अन्य प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। 5 विभाग द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के
पक्ष में 5 प्रेजेंटेशन दिए गए, जिसमें हमारे हेवी इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमएसएमई, पर्यटन और माइनिंग सेक्टर सभी ने अलग अलग प्रकार से हमारी अपने विभागों की जो पॉलिसियां हैं विस्तार से बता करके अपने निवेश के आकर्षक प्रस्ताव के आधार पर मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को टटोलने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 3 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मंच के माध्यम से अनुभव साझा किए जो ऑलरेडी हमारे अपने मध्य प्रदेश में बंगाल, कलकत्ता से जाकर के पहले से ही व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं। जैसे बिरला ग्रुप, संजीव पुरी प्रेसिडेंट ने बिरला ग्रुप के बारे में बताया कि हमारा संबंध पुराना है और उनने अपने सर्वाधिक निवेश के लिए मध्य प्रदेश को चुना है। संदीप घोष, उन्होंने कहा कि लगभग 3,500 करोड़ का नया निवेश अतिरिक्त रूप से करने की हमारी मध्य प्रदेश की योजना है। आलोक बिरला, एमडी स्वरा हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड, आपने कहा कि 37 एकड़ की भूमि हमने ले ली है, लगभग 10 से 12 माह में 300 करोड़ का नया निवेश भी हम मध्य प्रदेश में करने वाले हैं। 4 राउंड टेबल बैठकें आयोजित की गई थी, जिसमें स्टील एंड माइनिंग सेक्टर, हॉजियरियम गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, लॉजिस्टिक और नेस्कॉम के साथ राउंड टेबल मीटिंग हमने की है। इंटरेक्टिव सेशन में प्रदेश में लगभग 19,270 अर्थात लगभग 20,000 करोड़ का निवेश के प्रस्ताव हमको मिले हैं, जिसमें 9,450 लोगों को रोजगार अर्थात लगभग 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रमुख निवेश प्रस्ताव जो आए हैं कुछ मैं बताना चाहूंगा। जैसे हिमाद्री केमिकल्स, इन्हें निवेश की संभावना लगभग 5,425 करोड़, जिसमें 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी, ये 5,040 करोड़ के निवेश की संभावनाओं पे इन्हें प्रस्ताव दिया, जिसमें 2,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा सीमेंट के क्षेत्र में काम करने का आश्वासन दिया है, जिसमें लगभग 3,000 करोड़ का निवेश और 1,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जुपिटर सोलर, श्री आकाश गरोड़िया जी द्वारा सौर विनिर्माण में 2,500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव हमको मिला है, जिसमें 1,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। कई सारे ग्रुप, आधुनिक ग्रुप्स जो इस्पात के क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे पर्यटन में, लॉजिस्टिक में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, अभियांत्रिकी में, खाद्य प्रसंस्करण में, प्लास्टिक सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब मिलाकर के लगभग 20,000 करोड़ के प्रस्ताव और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार की बड़ी संभावना आज बंगाल में कलकत्ता दौरे से हमको मिली है। हमने सभी मित्रों से कहा है कि वो अपने प्रस्ताव जो उनने दिए हैं हमारे अधिकारियों से मिलकर के हम उस पर अतिशीघ्र आगे की कार्रवाई करेंगे और भविष्य की दृष्टि से एक निश्चित समय सीमा के अंदर मध्य प्रदेश में सबको निवेश का मौका मिलेगा। इसी महीने 27 तारीख को मध्य प्रदेश में सागर संभाग में हमारी इन्वेस्टर समिट होने वाली है। हमने उसका निमंत्रण दिया है। हमारी सरकार बनने के बाद लगभग हर माह हम अपने कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे अलग अलग सेक्टर में रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट के ऑफर भी दिए जाते हैं। लेकिन केवल उसी रीजन में नहीं, पूरे प्रदेश में जहां जहां भी उद्योगपति चाहे वहां वो अपने निवेश के स्थान को चयन करके वो अपना इंडस्ट्री प्रारंभ करे। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारी मध्य प्रदेश में आने वाले समय में ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव फरवरी माह में होने वाली है। उसके पहले हमारे 10 रीजन में ये इस प्रकार के आयोजन होंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में भारत 10 साल में 11वीं अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर के 5वें स्थान पर आया है। और अब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब तीसरी बार सरकार बनाई है तो हमारी तीसरी ताकत बने, इसलिए हम सब मिलकर के काम करें। क्या बंगाल, क्या मध्य प्रदेश, क्या बिहार, क्या उड़ीसा, हम सब मिले, अलग अलग राज्य, और सब मिला करके भारत को दुनिया के अंदर एक बेहतर संभावना वाला प्रदेश भी बनाए और आर्थिक रूप से संपन्न बनाए, जो हमारे सभी बेरोजगारों को रोजगार दिलाए,
जो निवेशक है उनको भी सक्षम बनाए। कुल मिला के भारत की ताकत दुनिया में स्थापित हो, हम सब इस दिशा में काम कर रहे हैं। एक बार फिर मेरा बंगाल के सभी भाई और बहनों को नमस्कार।